میرے نبی نے تو نکاح کو اتنا آسان کر دیا. آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس کو سب سے کم خرچ میں نپٹایا جائے. نبی کے دور میں نکاح ہوتا تھا، بہت معمولی خرچ میں نکاح ہو جاتا تھا. اور ایسا نہیں کہ نبی کے دور میں سب غریب لوگ تھے، اس میں عثمان غنی کے جیسے کروڑ پتی لوگ بھی تھے، اس میں عبد الرحمن بن عوف کے جیسے کروڑ پتی لوگ بھی تھے. دولت والے ہوتے تھے یا غریب ہوتے تھے، بڑے سمپل طریقے سے نکاح کر لیتے تھے اور بیوی کو لے آتے تھے. اور وہاں ایک نہیں چار بیویوں کا رواج تھا. اسلام نے اگر مرد کے پاس طاقت ہے تو 4 بیویوں تک کی اجازت دی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آج ایک مرد زنا کر کے 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے اتنا برا نہیں مانا جاتا. اگر کوئی بیچارہ اس کے پاس طاقت ہے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اگر وہ ایک کے ساتھ ساتھ دوسری بیوی کر لے، دوسری شادی کر لے، بوال ہو جاتا ہے صاحب. پورے گاؤں والے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں اور پہلی بیوی اور اس کے گھر والے تو اس کا جینا حرام کر ہی دیتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، حلال کو مشکل بناؤ گے حرام آسان ہو جائے گا. اور آج حرام آسان ہو چکا ہے اور ہماری اور آپ کی سوچ سے بہت اوپر جا چکا ہے. زناکاری اور بدکاری مسلم سماج میں اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے پاس آئے دن فون آتا ہے اور ایسے ایسے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ شرم آتی ہے. مولوی صاحب، لڑکے نے لڑکی کے ساتھ غلط کام کر لیا، پھر لوگوں نے شادی کرا دی، شادی کے 3 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا. اب کیا کیا جائے؟ کیا دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ یہ وہ مسئلے ہیں، ان کا جواب کیا دینا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن مسلمانوں کی سوسائٹی میں اس طریقے کے مسئلے پیدا ہو، یہ سوچنے کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ افسوس کرنے کی بات ہے، یہ افسوس کرنے کا مقام ہے. حلال کو مشکل بناؤ گے حرام آسان ہو جائے گا. شادیوں کو آسان کرو. نوجوانوں تم سے بھی کہتا ہوں، اپنے باپ سے جا کے کہہ دو، اپنی ماں سے جا کے کہہ دو، میری شادی سنت کے مطابق کرو، آسان طریقے سے کرو. اپنے سسر کے اوپر بوجھ نہ بنو، اپنے ہونے والے سسر کے اوپر بوجھ نہ بنو، کسی طریقے کے جہیز کے چکر میں نہ پڑو. آسان اور سمپل لائف گزارو، عزت اور خودداری کے ساتھ. سسرال سے ملنے والے پیٹ سے بہتر ہے چٹائی پر لیٹ کر کے زندگی گزار دو. سسرال سے ملنے والے فریز کا ٹھنڈا پانی پینے سے بہتر ہے کہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی کے گزارا کرو. سسرال سے ملنے والی بائک پر چلنے سے بہتر ہے اپنی کمائی کی سائیکل پر اپنی بیوی کو بٹھا کر کے چلو. میرے پیارے ساتھیوں، عزت اور خودداری آپ کے ہاتھوں میں ہے، اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجیے ہم کو کیا کرنا ہے. میرے عزیزوں، زناکاری وہ گناہ ہے جو جہنم کے اندر لے کے جانے والا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا ہی گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے. اللہ کے نبی کی عادت تھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صحابہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے تھے اور آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام اپنا خواب بیان کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی اپنا خواب بیان کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی نے اپنا خواب بیان کیا، اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جہنم کے عذاب کے بہت سارے مناظر دکھائے تھے. بہت لمبی حدیث ہے، میں پوری حدیث آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس خواب میں دیکھا کہ آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جو تندور کے جیسی جگہ تھی. تندور جس میں روٹی بنائی جاتی ہے، تندور کے جیسی کوئی جگہ تھی. اللہ کے نبی فرماتے جب میں نے جھانک کر کے دیکھا فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، اس تندور کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، چلانے کی آوازیں. میں نے جب جھانک کر کے دیکھا تو اس میں بہت سارے مرد و عورت الٹے لٹکے ہوئے تھے اور سب کے سب برہنہ تھے، سب کے سب ننگے تھے. اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ تھا، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگے، وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور جہنم کی آگ آتی تھی اور ان کی شرمگاہوں میں داخل ہو رہی تھی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جب وہ جہنم کی آگ آتی تھی اور ان کی شرمگاہوں میں داخل ہوتی تھی، وہ چلانے لگتے تھے، وہ چیخنے لگتے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کے اتنا دردناک عذاب ہو رہا ہے؟ جواب ملا ہؤلاء الزناۃ والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد ہیں اور زناکار عورتیں ہیں. میرے بھائیوں، اس سماج سے اس برائی کو مٹانا ہے تو یہ 2 کام کرنا ہم کو بہت ضروری ہے. پہلا کام، اپنے گھر میں ہمیں ماحول پردہ والا اور شرم و حیا والا بنانا پڑے گا. اپنے گھر میں محرم غیر محرم کا فرق کرنا پڑے گا. آپ کی لڑکی جوان ہو گئی، اب کوئی بھی آتا ہے گاؤں کا اور اگر آپ کی بیٹی بے پردہ اس کے سامنے آ جا رہی ہے تو اس پر آپ کو پابندی لگانا پڑے گا. میں جانتا ہوں جس ماحول میں یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں وہاں بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہاشم املہ اگر اس ملک میں جہاں ہر طرف ننگی عورتیں گھومتی ہوں، اگر اس ملک میں اس کی بیوی سر سے پیر تک نقاب میں چل سکتی ہے تو آپ کے علاقے میں اگر یہ پردے کا ماحول نہ ہو، لیکن اگر آپ چاہیں گے، اگر باپ چاہے گا، اگر ماں چاہے گی تو اس کی بیٹی اس ماحول پر بھی انشاءاللہ عمل کرے گی. میرے پاس ایسے بھی کیس آتے ہیں میرے بھائی، ایسی بچیوں کے فون آتے ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم ایسے گھروں میں شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں ہمیں اسلامی پردے پر عمل کرنے دیا جائے، جہاں دیور اور جیٹ سے پردے کا ماحول ہو، جہاں بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، ہم ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں. آج کے اس دور میں ایسی بھی مسلمان لڑکیاں ہیں. یہ پہلا کام آپ کو کرنا پڑے گا، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا پڑے گا. اور دوسرا کام کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے میرے پیارے ساتھیوں، زناکاری اور بدکاری کو نہیں روک سکتے.
जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है सूद खाना, ब्याज खाना। अल्लाह के नबी ने लानत की है बाकायदा, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सूद को लिखने वाला, सब पर अल्लाह की लानत हो। और कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर सूद खाने वाला अगर सूद खाने से बाज नहीं आता है, अगर ब्याज खाने वाला अगर ब्याज खाने से बाज नहीं आता है, तो कुरान कहता है अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। आज कौन ब्याज नहीं खा रहा है? किसका सेविंग अकाउंट नहीं है? सबका सेविंग अकाउंट है, और सबके अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 10 रुपया, किसी के अकाउंट में 100 रुपया, किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपया, जिसकी जितनी कैपिटल है उस हिसाब से ब्याज आ रहा है। और ये तो वो ब्याज है जो सेविंग अकाउंट में मिलती है। कितने मुसलमान तो बाकायदा एफडी कराते हैं, बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर दिया, 1 लाख पर 1 लाख 6,000 रुपया हर साल ब्याज बैंक दे रहा है। कितने बड़े बड़े पैसे वाले मुसलमान इसी ब्याज के जरिए पैसा कमा रहे हैं। माफ करना मेरे भाई, इतना बड़ा गुनाह है ये ब्याज। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी सगी माँ के साथ जिना करने से भी बड़ा गुनाह है। आपने फरमाया कि जिना के सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, उसमें सबसे हल्का दर्जा ये है अय्यन की हर रजुल उम्महू, के अपनी माँ के साथ इंसान जिना करे। मेरे प्यारे साथियों, सूद और ब्याज से अपने आप को बचाओ। अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, ऐसी कंपनियों में पैसा न लगाओ, ऐसे बिजनेस में पैसा न लगाओ जो फ्रॉड है, जो जुआ है, जो सूद है। बहुत सारी कंपनियां आजकल चली हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी के नाम से, कोई फला मेटा ओजोन के नाम से, कोई फला कंपनी के नाम से, कोई ड्रीम 11 के नाम से। ये नौजवानों आपके पैसे को बर्बाद करने के लिए और आपको जुए और सूद की लानत गिरफ्तार करने के लिए सारी कंपनियां आई। हलाल तरीके से पैसा कमाओ, बहुत सारे पैसा कमाने के तरीके हैं। तो ये सूद और ब्याज मेरे भाइयों जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। अब 2-4 बातें और बयान करूंगा और जाते जाते एक अपील करके जाऊंगा। आप जानते हैं हमारे शेख तारिक साहब का ये इदारा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 600-650 यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस इदारे के लिए ये जलसा हुआ है, आप इसका ताउन करते हुए यहाँ से जाएंगे। आखिरी 2-4 बातें और सुन लीजिए, फिर हम बात खत्म करेंगे। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। आप जहन्नम में लेकर के जाने वाले अमल की बात कर रहा हूँ मेरे अजीजों। जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और वो अमल है जुल्म करना। अगर जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे, तो ये अमल भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा। मेरी उम्मत के अंदर 2 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मैंने उनको अभी नहीं देखा है। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यद्रिबून बिहन नास। ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को मारेंगे। उलमा ने लिखा है कि गाय की दुम की तरह कोड़े से मुराद पावर है, ताकत है, इक़्तिदार है, कुव्वत है। आज अगर किसी के पास कोई ताकत है और अपनी ताकत के जरिए वो दूसरों पर जुल्म कर रहा है, बेकसूरों को मार रहा है। 1,41,000 जी बंदा ने दिया है माशाअल्लाह। नेपाली। ये 1,41,000 रुपये नेपाली हैं, किसी अल्लाह के बंदे ने इस इदारे में ताउन के तौर पे दिया है। अल्लाह ताला इस भाई के ताउन को कबूल फरमाए, इसके माल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जिनके हाथ में पावर है और पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे वो लोग जहन्नम में जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी मुल्क के हालात क्या हैं, और हमारे जिस स्टेट से मैं आता हूं उस स्टेट के हालात भी आप देख रहे हैं। किस तरीके से बेकसूर को कसूरवार और कसूरवार को बेकसूर बनाया जाता है हम जानते हैं। लेकिन हाँ, 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। अगर शर्जील इमाम नाम का वो लड़का जिसको बेकसूर जेल की काल कोठरी में डाला गया, तो आज अल्लाह का फजल करम है, उस लड़के की बहन ने अपनी तालीम के बल पर जो जज बन गई, अदालत की गालिबन हाई कोर्ट की वो जज बनी है, उसने दुनिया को दिखा दिया कि तुम जुल्म करके हमारे टैलेंट को नहीं रोक सकते हो, हमारी सलाहियत को नहीं रोक सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, जालिम याद रखे, हर जालिम ये बात याद रखे कि अल्लाह ताला ने हर फिरौन के लिए मूसा का इंतजाम करके रखा हुआ है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहन्नम में जाने वाली दूसरी किस्म होगी उन औरतों की, वह निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहन करके भी नंगी होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी उनकी तरफ माइल हो जाने वाली होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर नहीं जाएंगी। वला यजिदन रीहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। तो ये अमल भी मेरे प्यारे साथियों जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। और आगे बढ़िए, किसी का हक मार लेना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना, भाई का अपनी बहन का हक मार लेना, बाप का अपनी बेटी का हक मार लेना,
पड़ोसी का हक मार लेना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन नक़द शिब्रम मिनल अर्दी, जो किसी की जमीन पर एक बालिश एक बित्ता अगर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेगा तो फिक़ मिन सबी अर्दीन यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन उसको 7 जमीनों का तौक़ उसकी गर्दन में डाला जाएगा। ये जमीन ये जायदाद सब यही रह जाएगी मेरे भाई। किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके आप अपने बच्चों के लिए शायद फ्यूचर बना दें, मगर अपना फ्यूचर आप खराब कर लेंगे, अपने आप को जहन्नम का हकदार बना लेंगे। आज कितनी जमीनें लोग हड़पते हैं, हम दूसरों से क्या शिकवा करें। आज कब्रिस्तान की जमीन पर, ईदगाह की जमीन पर और मस्जिदों की जमीनों पर लोगों ने नाजायज कब्जा करके रखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी की जमीन एक बित्ता भी अगर किसी की जमीन पर, औरतों की ये कितना है कुछ गिनती नहीं, ये खवातीन की तरफ से औरतों की तरफ से अमाउंट आया है, इसमें कुछ इंडियन है कुछ नेपाली हैं। अल्लाह ताला इन तमाम हमारी माँ बहनों की उनके ताउन को कबूल फरमाए और मजीद उनको अल्लाह की राह में ताउन देने की तौफीक अता फरमाए। शेख फिरोज आलम नदवी साहब ने 50,000 रुपये का ताउन पेश किया है। आप मुदीरुल जामिअतुल इस्लामिया रियाजुल उलूम हैं। अल्लाह ताला शेख मोहतरम के इस अतिया को कबूल फरमाए, इनके माल में इनके अहल में बरकत अता फरमाए और हमारे वो भाई जो अभी तक इस काम में पीछे रहे उनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो आगे बढ़ें और इस कार्य खैर में हिस्सा लें। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल फरमाए। तो मेरे अजीजों, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक अमल, इंसान दूसरे का हक मारता है, ये भी एक बहुत बड़ा अमल है। और आगे बढ़ो, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, उसका ताल्लुक हमारे बदन के एक ऐसे हिस्से से है जो है तो बहुत छोटी सी चीज मगर इतनी खतरनाक है कि बड़ी बड़ी जंगें करा देती है, जिसको हम ज़बान कहते हैं। ज़बान का गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत मुआज़ इब्न जबल से फरमाया, उनको बहुत सारी बातें आपने बताई, सदका के बारे में बताया, नमाज के बारे में बताया, जिहाद के बारे में बताया। फिर आपने फरमाया कि ऐ मुआज़, क्या मैं इन तमाम बातों का खुलासा तुमको न बता दूं? उन्होंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल जरूर बता दीजिए। आपने अपनी ज़बान की तरफ इशारा करके फरमाया अम्लिका लैका लिसानक, ऐ मुआज़ अपनी ज़बान को कंट्रोल कर लो, ये सारी चीजों का खुलासा है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल व इन्ना लमुआखज़ूना बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी क्या अपनी जबान से जो हम बोलते हैं क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा? आपने फरमाया ऐ मुआज़, मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझता था, ऐ मुआज़ तेरी माँ तुमको गुम कर दे। वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, क़यामत के दिन लोग अपनी नाक के बल घसीट करके जहन्नम में जाएंगे इसी अपनी जबान की करतूतों से। ये गाली इसी जबान से बकी जाती है, किसी की इज्जत इसी जबान से उतारी जाती है। 9,500 रुपये कसीमुद्दीन जी ने दिया। ये कसीमुद्दीन साहब हैं कोई, इन्होंने 9,500 रुपये का गिरा कद्र ताउन इस इदारे के लिए दिया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमाए। किसी और भाई ने भी 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए, इनकी नेकी को अल्लाह कबूल करे, इनके माल में बरकत अता फरमाए। मेरे अजीजों, जहन्नम में लेकर के जाने वाली बहुत बड़ी चीज जबान से किए जाने वाले गुनाह है। गीबत, चुगली, किसी की इज्जत उतारना, किसी को जलील करना, ये सारे काम इसी जबान से किए जाते हैं। खबरदार अपनी जबान को संभाल करके रखो मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं मन समत नजा, जो खामोश रहा वो बच गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह के ऊपर और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, वो बोले तो अच्छी बात बोले वरना चुप रहे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपसे भी कहना चाहूंगा अपनी जबान पर काबू रखिए। जबान से किए जाने वाले गुनाह भी औरतों को जहन्नम में लेकर के जाएंगे, मर्दों को तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। औरतों के ज्यादा जहन्नम में जाने की वजह उनकी जबान होगी। और आगे बढ़िए, एक और गुनाह है जो जहन्नम में लेकर के जाता है। हर जुमा के खुतबे में हम सुनते हैं वकुल्लु मुहदसतिन बिदा वकुल्लु बिदातिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये एक और भाई ने 100 रुपये का ताउन दिया है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। दीन के अंदर हर नया काम बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाती है। मैं कभी कभी अपनी तकरीरों में ये बात कहता हूं कि देखो बिदाती अपनी बिदत से तौबा करे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। चोर तौबा कर सकता है, जानी तौबा कर सकता है, कातिल तौबा कर सकता है। क्यों? कातिल को पता है मैं गलत काम कर रहा हूं, जानी को पता है मैं गुनाह का काम कर रहा हूं, चोर को पता है मैं चोरी करके कोई गुनाह का काम कर रहा हूं। मगर बिदाती, बिदत करने वाला अपने आप को नेक समझ करके और अपनी बिदत को नेकी समझ के करता है, इसलिए उसका तौबा करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, बिदाती के तौबा करने की उम्मीद बहुत कम होती है।
या आप कह सकते हैं कि बिदअती से तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जहां कोई बिदअत पैदा होती है वहां कोई सुन्नत खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारी मस्जिदों में फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ होती है। जैसे ही सलाम फेरा, इमाम साहब ने हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया और सारे मुक्तदी भी इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं। जाहिर है कि ये अमल बिदअत है। इनफरादी तौर पर तो इंसान दुआ कर सकता है, मगर इज्तिमाई तौर पर सारे लोग मिलकर के दुआ करें, ये साबित नहीं है, ये बिदअत है। और इसका नुकसान क्या होता है कि नमाज के बाद के जो अज़कार हैं वो लोग नहीं पढ़ते और ऐसे ही उठ के चले जाते हैं। तो मेरे साथियों, बिदअत से अपने दामन को हमें बचाना है। बिदअती क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी के हाथों से कौसर का जाम भी उसको नसीब नहीं होगा। ये मजीद अच्छा 1000 रुपए का ताउन एक भाई ने और पेश किया है, अल्लाह इसको भी कबूल फरमाए। अभी हमारे एक भाई ने पीछे से कहा कि कुछ लोग टाइम के पहले अजान दे देते हैं। टाइम के पहले, चाहे असर की अजान हो चाहे फजर की अजान हो, अगर जो टाइम है बहुत सोच समझ करके जंतरी बनाई गई, टाइमिंग बनाई गई है, इस टाइमिंग से पहले अगर कोई अजान देता है तो ये भी गलत है। इसी तरीके से बात जगहों पर देखा गया कि कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने के बाद वहां खड़े होकर अजान दे रहे। भाई ये क्या है? कहते साहब हम अजान दे करके शैतान को भगा रहे हैं यहां से, ताकि हमारा जो मुर्दा है उससे सवाल जवाब में आसानी हो जाए। माफ कीजिए, मुर्दे की आसानी के लिए दुआ करने का हुक्म है, अजान देने का हुक्म नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आप बिदअत के हर तरीके से अपने आप को बचाइए। एक भाई पूछ रहे हैं कि रियाकारी से बचने का क्या तरीका है। रियाकारी से बचने का एक तरीका तो यह है कि आप जब भी कोई नेकी करें, इस एहसास के साथ और इस फीलिंग के साथ करें कि किसी को पता न चले, चुपके से नेकी करो। कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। ये एक आदत डाल लें। दूसरी बात है कि अपनी नेकी के बारे में बयान न करें लोगों से। और फिर तीसरी चीज ये है कि अगर आप रियाकारी से बचना चाहते हैं तो जिंदगी में कुछ अमल ऐसा करके जाइए जो बिल्कुल सीक्रेट हो, आपको पता हो, अल्लाह को पता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने नेक बंदों के बारे में फरमाया, वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को खाना खिलाते हैं और कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि हम तुमको अल्लाह ताला को राजी करने के लिए खिला रहे हैं, हमें कोई बदला नहीं चाहिए, कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। बस ये होना चाहिए इखलास। अगर ये चीज आपके अंदर है इंशाअल्लाह तो रियाकारी से आप बच जाएंगे। अगर कोई रिश्तेदार या माँ बाप कुरान पढ़ने के लिए बोला तो बच्चा उनको खुश करने के लिए अच्छे से पढ़ते हैं और सऊदी की आवाज क्या लिखा है, सुरीली आवाज से पढ़ते हैं, तो ये रियाकारी है या नहीं? देखिए, कुरान को ऐसे भी सुरीली आवाज से पढ़ना चाहिए। माँ बाप को दिखाने के लिए आप पढ़ते हैं तो गलत है। कुरान जब भी पढ़ें तो अच्छी आवाज में पढ़ने का हुक्म है। अल्लाह के नबी की हदीस है, मल्लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, कि जो कुरान को गा करके ना पढ़े, गा करके पढ़ने का मतलब कुरान को अच्छी आवाज में, सुरीली आवाज में ना पढ़े, वो हम में से नहीं है। कुरान को अच्छी आवाज में पढ़ना चाहिए, लेकिन बाप के डर से पढ़ रहा है और ऐसे नॉर्मल आवाज में पढ़ा तो ये गलत बात है। अच्छी आवाज में हमेशा पढ़ना चाहिए। अगर कभी बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, उस्ताद के डर से कभी क्लास में पढ़ दिया तो उतना बड़ा कोई मसला नहीं है, उसको रियाकारी नहीं बोलेंगे। अगर कोई इमाम नमाज पढ़ाए और पढ़ाते पढ़ाते नापाक हो जाए, उनकी वजू खत्म हो जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर नमाज के दौरान किसी का वजू टूट जाता है तो उसको नमाज तो फौरन तोड़ देनी चाहिए। हदीसों से जो बात साबित है वो यही है कि उसको नमाज फिर उसके आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब वो इमाम है तो ऐसी सूरत में वो अगर अकेला पढ़ रहा होता तो भाई चलो ठीक है, नमाज तोड़ के जाएगा, दोबारा वजू आके पढ़ेगा। तो अगर वो इमाम है तो भी वो यही काम करे। अगर उसका वजू टूट गया है तो वो नमाज के बीच में से निकल जाए और मुक्तदियों को बता दे कि ये मेरे साथ मसला हो गया, मेरा वजू टूट गया, और दोबारा आकर के वो फिर से नमाज पढ़ाए। इसलिए कि अगर नमाज के दौरान वजू टूट गया तो फिर नमाज बातिल हो गई, फिर वो नमाज उसको दोहराना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का जो वाक़या है कि उनके ऊपर जब अबू लुलू फिरोज ने हमला किया था तो वो गिर पड़े थे, लेकिन उन्होंने गिरते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे बढ़ाया और बाकी नमाज उन्होंने पढ़ाई। तो वहां मसला दूसरा था, वहां नमाज बातिल नहीं हो रही थी। यहाँ आपने जो सवाल पूछा है कि नमाज वजू टूट जाए, वजू टूट रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर नमाज को दोहराना पड़ेगा। किसी और को इमाम बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई और इमाम बनेगा तो फिर शुरू से नमाज पढ़ाना पड़ेगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मेरे भाइयों, ये जहन्नम में लेकर के जाने वाले चंद आमाल आपके सामने मैंने बयान किए हैं, और बातें और भी हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ काफी ताखिर भी हो गई और काफी लोग हमारे यहाँ से ठंडी की वजह से, चूंकि ठंडी भी बढ़ रही है, मैं आखिर में यही कहूंगा कि जहन्नम जैसी खतरनाक जगह से हमें और आपको अल्लाह ताला से पनाह भी मांगनी चाहिए और हमें दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि हमें जहन्नम के अजाब से बचाए, और इसी तरीके से हमें वो अमाल भी करने चाहिए जो हमें जहन्नम में लेकर के जाने से बचा ले। सवाल पूछा गया कि बिदअती के पीछे नमाज होगी या नहीं होगी।
دیکھیے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. اگر کوئی بدعتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسی بدعت کرتا ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، مثال کے طور پر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے اور وہ قبر پہ سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بدعت تو کفر تک لے کے جا رہی ہے، شرک تک لے کے جا رہی ہے. ایسے امام کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی بدعتی ہے لیکن اس کی بدعت ایسی بدعت نہیں جو کفر تک لے کے جاتی ہو، تو وہ بدعتی ہے، گنہگار ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جان بوجھ کر کے قصداً اچھے امام کو چھوڑ کر کے، متبع سنت امام کو چھوڑ کر کے ایسے بدعتی امام کے پیچھے نمازیں پڑھیں. جہاں مجبوری کی بات ہو، آپ بازار میں جا رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور کوئی مسجد آ گئی تو وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کنفرم ہے کہ وہ بدعتی جو ہے وہ کوئی شرکیہ عمل کر رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس ادارے کو، جس ادارے کی طرف سے آج کا پروگرام ہوا ہے، شیخ طارق صاحب کا یہ ادارہ ہے، اللہ اس ادارے کو دن دنیا چوگنی ترقی عطا فرمائے. جن بھائیوں نے تعاون پیش کیا ہے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. جو ابھی تک پیچھے رہ گئے ہیں اللہ ان کو آگے بڑھ کر کے اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پڑھ تو دیے بھائی شروع میں. ارے نہیں بس